لوگوں کو روکتے ہیں مت جاؤ پروگراموں میں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ لوگ اللہ کی راہوں میں روڑے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت دیں، ہم تبلیغ کریں تو حرام ہو، اور حضرت جاہل ہو کر کے شرک کی طرف بلائیں، بدعت کی طرف بلائیں، اور ہم روکیں تو ہم فتنے باز ہیں، ہم امت کے شرازے کو منتشر کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے، یہ دھاندلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے عزیز ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عدل کرو، انصاف کرو، اور حقیقتوں سے آنکھیں نہ چراؤ۔ کوئی کسی کی خبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی خبر میں نہیں جائے گا۔ ہمارا کام بھلائیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، برائیوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہمیں میٹھے کی بھی لذت بتلانی ہے اور کڑواہٹوں کو بھی بتلانا ہے کہ یہ کڑوی چیزیں ہیں۔ غرض تو یہ کرامتیں جو میں نے چند مثالیں دیں، یہ کرامت بزرگوں کی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو شیطانی وسوسے، بہرحال اس تعلق سے کافی مثالیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ استدراج ہے۔ یہ کیا کرامت اگر آپ کو دیکھنی ہے، اللہ اکبر، کرامت دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں حضرت عقبہ بن نافع جل القدر صحابی ہیں، جہاد میں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پار کرنا ہے، مجاہدین کو لے کے گھوڑے ڈال دیتے ہیں، سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ بآسانی پار ہو جاتے ہیں سمندر سے۔ پھر اپنے فوجیوں سے پوچھتے ہیں، مجاہدین سے، کسی کا کچھ غائب ہوا ہے؟ کسی نے کہا میرا مٹی کا، میرا لکڑی کا پیالہ غائب ہوا ہے، لوٹا غائب ہوا ہے، کچھ بتلایا اس نے؟ مصلح بچھایا، اللہ سے دعا کی، اے پاک پروردگار تیری راہ میں جہاد کرنے والے ایک بندے کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، تو دے دے۔ پانی کا ریلا آیا اور لکڑی کا پیالہ ساحل سمندر پہ آ کے ٹھہر گیا۔ یہ ہے کرامت۔ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں اور باڑا بغل میں ہے، گھوڑے کا استبل بغل میں ہے، اور گھوڑے تڑپ رہے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں بچک رہے ہیں۔ جب قرآن سے نظر اٹھا کے اوپر دیکھی تو دیکھا کہ نور کا ایک سایہ ہے جو نیچے اترتا ہی آ رہا ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی آج رات میں نے یہ دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی سکینت تھی، یہ رحمت کے فرشتے تھے کہ جب تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے۔ یہ ہے کرامت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کرامت۔ ہمیں گھوڑے گدھوں سے بدکاریاں کرنے والوں کی، بزرگوں کی باتیں لا کے کرامتوں میں شامل کرتے ہیں، لڑکوں سے عشق اور محبت کی داستانیں بیان کرنے والوں کی کرامتیں لا کے بیان کرتے ہیں۔ کرامت ہے یہ، ایک سے ایک کہانیاں عجیب و غریب۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بس آمین یا رب العالمین۔ الغرض تو میں عرض کر رہا تھا کہ معجزات کی حقیقت یہ ہے، ما فوق جو فطرت سے بالا تر چیزیں نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزات جو نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ خود اس میں نبیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں نبی خود انوالو نہیں ہوتا کہ بس اس کی مرضی ہے اور جب چاہے وہ معجزات کو لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرے، دکھا دے یا بیان کر دے، نہ، بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور منشا پہ مبنی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے نبیوں کے ہاتھوں پر وہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرامتیں بھی چلتے پھرتے نہیں ظاہر ہوتی، اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے۔ جب نبی اپنے تئیں معجزے ظاہر نہیں کر پاتا تو امتی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ جب چاہے کرامت ظاہر کر دے؟ بولو، نہیں ہو سکتی۔ تو جو تھوک کے بھاؤ ہمارے یہاں اپنی اپنی جماعتوں کے بزرگوں کے کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، سب علم گلم بدعقیدگی کی شیطانی دلیلیں ہیں۔ یہ ہم کرامتوں کے
करामतों के ऊपर हमारा ईमान और एतकाद है, पर कौन सी करामतें? वो करामतें जो कुरान और सुन्नत से न टकराती हों, अकीदे से न टकराती हों, अकीदे के खिलाफ ना हो, वो करामतें। और जो करामतें अकीदे से टकराती हों, अकीदे तौहीद के मुतसादिम हों, हम उन करामतों को तस्लीम नहीं करते। औज़ु बिल्लाह। ऐसी ऐसी करामतें बयान करते हैं कि जनाब शाह वलीउल्लाह के वालिद भूखे थे। ज़करिया साहब ने लिखा है अपनी फज़ाइल अमाल तबलीग निज़ाम में, देखा आंखें खुली हुई हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मंडलाती हुई आ रही है। अस्तग़फिरुल्लाह। हिंदुस्तान रूह मंडलाती हुई आ रही है और हाथों में 2-4 बाल दे करके, बीमार थे, हाथों में 2-4 बाल दे करके गई वो रूह। कहा तू शिफायाब हो जाएगा, मेरे बच्चे तू शिफा याब हो जाएगा। ये करामत है, ये क्या है? ये ज़करिया साहब इतनी बदअकीदगी। अस्तग़फिरुल्लाह। एक से एक बात है, छोड़ें, आप हजरात पढ़ें उसको, खुद आपकी समझ में ये बात आएगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मौजज़ात जो नबियों के हाथों पे जाहिर होते हैं उसमें नबी का खुद दखल नहीं होता, बल्कि बसा औकात नबी को पता ही नहीं चलता कि ये मौजज़ा जाहिर होने वाला है। ये नुक्ता जरा ध्यान में रखना, नबी को पता भी नहीं होता कि ये मौजज़ा अभी जाहिर होने वाला है। इसकी दलील कुरान करीम में सूरह अन-नमल आयत नंबर 10 आप उठा के देखें। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा। कुरान की मुख्तलिफ मकामात पर मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे हैं और मुख्तलिफ तरीके से उसको बयान किया गया है। कहीं अल्लाह ने पूछा मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहने लगे अल्लाह ये मेरा आसा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ, मैं इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं और भी काम करता हूँ। अल्लाह ने कहा जमीन पे डाल दो। जमीन पे डाला तो वो एक फनफनाता हुआ सांप बन गया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अपने दिल में डरे, मूसा अपने दिल में डरे। अल्लाह ने फरमाया पकड़ लो, हम इसको फिर आसा बना देंगे। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कहा कि जमीन पे आसा डालो, डाला मूसा ने तो वो सांप बन गया। तीसरी जगह सूरह अन-नमल में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया आयत नंबर 10 कि वअल्क़ि आसाका फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि मैंने मूसा से कहा अपना आसा डाल दो, तो जैसे ही उन्होंने डाला तो देखा कि वो झूमता हुआ एक सांप की शक्ल अख्तियार कर गया। वो आसा, वो डंडा झूमता हुआ सांप की शक्ल अख्तियार कर लिया उसने। वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। अल्लाह फरमाता मूसा पीठ फेर के भागे और पलट के भी न देखा उन्होंने। मूसा पीठ फेर के, वल्ला मुदबिरन कहां डंडा कहां डंडी, सांप देखा तो पीठ फेर के, वलम युअक़्क़िब अल्लाह ने फरमाया मुड़ के भी न देखा उन्होंने। या मूसा ला तखफ, अल्लाह ने फरमाया ए मूसा डरो नहीं, खौफज़दा न हो, इन्नी ला यखाफु लदैया मुरसलून, रसूल मेरे पास डरा नहीं करते, डरो नहीं, पकड़ लो फिर हम उसे लौटा। सवाल पैदा होता है अगर मूसा अलैहिस्सलाम को यह पता होता कि ये आसा अभी सांप बनेगा तो डरने की क्या बात थी, भागने की क्या बात थी? अरे हमें मालूम है कि जनाब आली ये माइक जो हमारे सामने है इसको मैं हाथ लगाऊं तो सांप बन जाएगा, हमें पता है। तो फिर इसमें खौफजदा होने की कौन सी बात थी, भागने की कौन सी बात थी? हमें यह भी मालूम है कि जब फिर दोबारा छू लूंगा तो माइक हो जाएगा, ये हमें कोई गजंद नहीं पहुंचा सकता, कोई ईजा नहीं पहुंचा सकता। तो इससे पता चला कि ये मौजज़ात जो होते हैं ये नबियों की मर्जी या मंशा की बात पे नहीं होते, बल्कि अल्लाह जब चाहता है
अपने नबियों के हाथों पर इन मोजज़ात को जाहिर फरमाता है। ठीक है, ये अकीदा ज़हन में रखो। इस मोजज़े से बाद लोग न जाने क्या क्या दलीलें पकड़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया तो औलिया भी मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा तो वो जिंदा हो गया। अरे ये ईसा का मोजज़ा था जालिमो, ये ईसा का मोजज़ा था। हाथ फेरना ईसा के बस में है, फितरत है कि नहीं? हाथ फेरना किसी मरीज पर हमारी आपकी ताकत और कुव्वत है कि नहीं? हाथ ईसा अलैहिस्सलाम फेरते थे तो अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा कर देता था। ईसा नहीं जिंदा करते थे। ईसा ने खुद कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, हुक्म से जिंदा करता हूं। यानी हाथ फेरता हूं, अल्लाह उसको जिंदा करता हूं। कहने लगे मैं परिंदा मिट्टी से बनाता हूं। मिट्टी से परिंदा बनाना हमारे ताकत कुव्वत, हमारी ताकत और कुव्वत में है। एक मिट्टी का ढांचा बनाना हमारी ताकत है कि नहीं? उसमें फूंक मारना हमारी ताकत है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन उसमें जान पिन्हाना किसकी ताकत है? अल्लाह। तो जब वो जान पहनाता है और वो परिंदा हो गया तो ये मोजज़ा है कि उन्होंने मिट्टी का परिंदा बनाया, उन्होंने उसमें फूंक मारी, ये उनकी ताकत थी। वो असबाब उन्होंने मुहैया कर दिए, जान पिन्हाया अल्लाह वहदहू ला शरीक। वरना वही ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, अपनी मां को भी वो बचा सके? बोलो, बचा सके? और जब आएंगे, क़यामत आएगी, करीब आएगी और अल्लाह उन्हें वफात देगा, मौत आएगी उनके ऊपर, तो वो अपने आप को भी बचा सकते हैं? अल्लाह वहदहू ला शरीक के हाथ में सब कुछ। तो ये नुक्ता समझिए, इसमें गलत मलत करते हैं लोग। और हमारे यहाँ के बड़े बड़े शेखुल इस्लाम, फखरुल इस्लाम और जुब्दतुल अमासिल के लोग, और उसको लप झप करके पूरा उम्मत को बेड़ा गर्क करके अपने बुजुर्गों के लिए सब साबित करते हैं। ये जड़ बना के अपने बुजुर्गों के लिए क्या करते हैं? सब साबित करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं वो जड़ें काट दो, बात खत्म, न बांस रहेगा और न बांसुरी बजेगी। यह है कुरान और सुन्नत की फहम। ऐसे नहीं कि बस जो दिल में आए बकते जाओ। अब आप सोचेंगे कि जनाब आली बहुत सारी चीजें जो नई ईजादात है, मसलन बस है, मसलन गाड़ी है, मसलन हवाई जहाज है, एक इंसान ने ईजाद की। आसमानों में वो लोहे और लक्कड़ के पुर्जे मनों कुंटलों आसमानों में उड़ रहे हैं। इसमें और मौजज़े में क्या फर्क है? एक जहन में कोई शक और शुबहा पैदा कर सकता है कि इसमें और मौजज़े में क्या फर्क है। आखिरकार हवाई जहाज का बनाने वाला भी तो एक इंसान है। उसने लोहे लक्कड़ जमा किए और जनाब आली पेट्रोल भरवाया या कुछ भी जो जिससे वो चलते हैं, और जनाब आली वो आसमानों के ऊपर सैकड़ों मन और कुंटल लेकर के वो प्लेन उड़ता है। तो मौजज़ा और इसमें क्या फर्क है? मौजज़े में और इसमें बुनियादी फर्क यह है कि मौजज़ा जो होता है, मौजज़ा जो होता है उसका सबब आदमी को मालूम नहीं होता है। उसका सबब मालूम नहीं होता है। अल्लाह चाहता है तो जाहिर फरमाता है। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ आप इशारा करें, नबी जमीन पे इशारा कर रहे हैं, चांद दो टुकड़े हो रहा है। कोई सबब है? कुछ भी नहीं, अल्लाह का हुक्म है, हो रहा है। लेकिन ये जो नई ईजाद करदा चीजें हैं जो उड़ रही, ये जो चल रही हैं, दौड़ रही हैं इंसानों की तरफ, ये इंसान के तजर्बों और इंसान के अक्ल और दिमाग की उपज है, पैदावार है। इंसान ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, तजर्बा किया है, मखलूकात से ताउन लिया है, अल्लाह की पैदा करदा चीजों को उसने जमा किया है। जमा करके अपनी अल्लाह ने जो अकल दी है उसको इस्तेमाल करके, तजर्बा करके और उसको लोगों के सामने लाके रखा है। ठीक है, तो इसके असबाब को दुनिया जानती है। जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं कि हवाई जहाज वैसे फूंक मारो हवाई जहाज बन के उड़ने लगेगा? है कोई ऐसा साइंसदान?
ना, बल्कि मेटेरियल सामने है, अल्लाह का पैदा किया हुआ मेटेरियल है कि नहीं? उसको उन्होंने अपने दिमाग से तरतीब दिया, रिसर्च किया और उसको उड़ाया। लेकिन जो मोजज़ा होता है उसमें इन दुनियावी मेटेरियलों का कोई दखल नहीं होता है, ये फर्क है। इसी तरह से मोजज़ा में और जादू में भी फर्क होता है। बाद लोग कहते हैं जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हाथ में कंकरी ली और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में कंकरी हमारे सामने ली, जब हाथ छोड़ा तो जनाब खनखनाते हुए पैसे गिर रहे हैं कि नहीं? इसमें और मोजज़े में क्या फर्क है? इसमें और मोजज़े में फर्क यह है, जो वही फर्क है कि मोजज़ात के असबाब मालूम नहीं होते हैं, किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जादू के असबाब कम ही लोग सही लेकिन मालूमात लोगों को होती है। और जादू करने के भी जो वसाइल और तरीके हैं, कोई भी इंसान उन तरीकों और उन जरियों को इस्तेमाल करके इस नतीजे या इस मंजिल पर पहुंच सकता है कि नहीं? ठीक है, आम लोगों को नहीं मालूम है, जाहिरी तौर पर उसका सबब पोशीदा है, छुपा हुआ है, नहीं पता है कैसे उसने ये कंकरी को वो बना दिया, नहीं मालूम है। लेकिन इस जैसे कितने जादूगर हैं जिन्हें इस बात का पता है। और कोई भी इंसान उससे वो इल्म जादूगर से हासिल करके इस नतीजे पर पहुंच सकता है और उसके सबब को वो जान सकता है कि इस सबब से ये कंकरी पैसे की शक्ल अख्तियार कर रही है, या वो बज़ाहिर पैसा नजर आ रहा है लेकिन इस जादू की वजह से जो आंखों पे किया गया है उसकी वजह से ये पैसा है। वरना अगर जादूगर को इतने ही हुनर और जादू से मालूम हो कि कंकरों पत्थरों को पैसा और सोना बनाता फिरे, तो फिर भीख न मांगे वो। तो ये फर्क है जादू में और मोजज़े में। भाइयों, कोई टफ मौजू तो नहीं है ना, ये समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मोजज़ा और करामत में भी क्या फर्क है? बुनियादी तौर पे आसान है। फर्क यह है कि मोजज़ात जो होते हैं वो अंबिया के हाथों पे जाहिर होते हैं, और करामात जो होते हैं वो सालिहीन और नेक लोगों के हाथों पे जाहिर होते हैं। मोजज़ा भी हक है और करामत भी हक है। हम करामतों पे भी ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। जो सालेह मुवहिद मुत्तबे सुन्नत होते हैं उनके हाथों पे करामतों का ज़ुहूर होता है। और ये करामतों, अच्छा यहां एक बात ये भी सुने, हमने ये निशानी बना ली कि जिसके हाथ पे कोई ऐसी चीज जाहिर हो जो अक्लो खिरद में आने वाली ना हो वो वली हो जाता है। नहीं, कितने औलिया अल्लाह हैं, कितने सहाबा हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं कि नहीं है? वो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्ह हैं या नहीं है वो? लेकिन उनसे कोई करामत नहीं जाहिर हुई, उनसे कोई करामत नहीं मनकूल है, अहादीस में रिवायात में उनकी कोई करामत नहीं लिखी गई है। तो क्या मतलब वो अल्लाह के वली नहीं है? हैं, वही अल्लाह के वली हैं। कभी कभी अल्लाह जाहिर फरमाता है। और मैं कहता हूं कि अगर सहाबे कराम की जुमला करामतों को एक पलड़े पे तराजू के रख दिया जाए और हमारे मुल्कों के ये जो टूट पुजिए अपने आप को वलायत की मंजिलों पे फाइज समझते हैं, इनकी एक बुजुर्ग की जो जमातें हैं ना हमारे यहाँ अपने अपने वलियों की सफाइयां बयान करती हैं, इनमें किसी भी जमात के किसी एक वली को जो कहते हैं वो अपनी जुबानों से एक पलड़े पे रख दिया जाए तो पूरे सहाबा की करामतों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा, इनके एक बुजुर्ग की करामत का पल्ला नीचे आ जाएगा। इस तरह थोक के भाव गढ़े गए हैं। क्यों मालूम है? ताकि उनका रोब तुम्हारे दिलों में पड़े। हाँ, ये न सोचो हमारी जमात इस करामत से खाली है, नहीं। अगर उनके पास 1000 बुजुर्ग हैं करामत वाले तो हमारे पास भी बने बनाए इतने बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारी जमात में शामिल हो जाओ, उस जमात में जाओ। ये करामत है, ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग हैं, उनके पास खिजिर आते हैं, खिजिर से मुलाकात करते हैं, जनाब आली तालीम देते हैं, तो ये करते हैं। दुनिया भर के नबी आते हैं, वो मुबश्शिरात, मनामात, ख्वाब और करामतें पूरा थोक के भाव अपनी किताबों में लिखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और इस तरह पब्लिक को क्या करते हैं? धोखा देते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं। और अगर वो कहे नहीं मैं ये कोई करामत, तू करामतों का मुनकिर है, करामतों का इनकार करता है, ये डराते हैं उससे। कोढ़ी कहे छू लूंगा,
कोड़ी गए छू लूंगा। ये डराते हैं, इस तरह डराते हैं। हमें ऐसी धमकियां न दो, न हमें इससे डराओ। हमारा ईमान करामतों पे है, पर वो करामतें जो ईमान और अकीदे से मुतसादिम ना हो, टकरा न रही। तुमने जो करामतें लाई हैं, अव्वलन इनके अकीदे ही डामाडोल है, इनका पता ही लता नहीं है बेचारों का। कोई कब्र पे फैद हासिल कर रहा है, कोई मजार को चूम रहा है, कोई दरगाह की खाकें छाट रहा है, कोई अल्लाह बना बैठा है, किसी का मरकद अल्लाह का अनवार बना हुआ है, किसी को हम्माम में अल्लाह के अनवार नजर आते हैं, उज़्बिल्लाह। कोई नबी का दावा किया बैठा है, कोई कुछ। इनकी करामतें बयान करते हो। जाओ, ले जाओ तुम अपनी टोकरियों में इन करामतों को। हमें ऐसे करामतों की जरूरत नहीं है। करामतें देखनी है, अल्लाह अकबर। तो सहाबे कराम, ताबईन, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, जिन पर सनद और सही रिवायतें मौजूद हैं, उन करामतों के ऊपर हम ईमान और यकीन रखते हैं। आइए ये चंद फर्क समझ लेने के बाद में एक दो मोजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाए, उनके हाथों पे जाहिर फरमाए। सबसे बड़ा मोजज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो है कुरान करीम। कुरान करीम जो सबसे बड़ा मोजज़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया है, और ये क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। ये सबसे बड़ा मोजज़ा है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ मोजज़ात थे जो उस दौर में हुए और फिर वो तारीख में नोट कर दिए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे वो जाहिर हुए। मिसाल के तौर पर सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं, और बहुत सारे मोजज़ात हैं, मैं कहाँ तक जिक्र करूँ। एक दो मोजज़ात मैं आपकी खिदमत में जिक्र करके फिर सवालात व जवाबात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इन मिसालों के जरिए ये मोजज़ात की बुनियादी बहस थी जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी। इतना समझ लेने के बाद में आप फिर चलते रहें, ठीक है। ये वो हद बंदियां हैं, ये उस सरहदें हैं जिनकी निशानदेही मैंने कर दी है, बाउंड्री लाइन खींच दी है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब इस दायरे में रहकर इस ढर्रे पर, इस महवर पर, इस कसौटी पर तौलते जाओ और छांटते जाओ, ठीक है। हजरत